ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਅਲਜਬਰੇ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਐਮਐਸਸੀ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੇਪਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮੈਸਟਰ 1 ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਥਿਊਰੀ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਸਮੈਸਟਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿੰਗ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬਾਈਨਡ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਇਸ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਅਲਜਬਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਥਿਊਰੀ। ਇਸ ਮਾਡਰਨ ਅਲਜਬਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਤੇ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਬੁੱਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮਾਡਰਨ ਅਲਜਬਰਾ ਬਾਏ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮਾਡਰਨ ਅਲਜਬਰਾ ਬਾਏ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਮਾਡਰਨ ਅਲਜਬਰਾ ਬਾਏ IN ਹਸਟੇ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸ ਬੁੱਕ ਹੈ ਉਹ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਗਰੁੱਪ ਥਿਊਰੀ ਔਰ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੇਸਿਕਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬਾਈਨਰੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨਸ, ਸੈਟਸ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੀਨੀਅਰ ਅਲਜਬਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ BSc 5th ਸਮੈਸਟਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦਾ ਬੇਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਲੈਕਚਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੈਟ ਟੌਪਿਕ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਏ ਗਰੁੱਪ, ਦੈਟ ਚੈਪਟਰ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਏ ਗਰੁੱਪ ਥਿਊਰੀ। ਤੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੀ ਪੂਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਮਾਡਰਨ ਅਲਜਬਰਾ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ YouTube ਲੈਕਚਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਸ ਤਿਆਰ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਨਾਓ we go to the chapter number 1 that is a group theory. So ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ in this chapter we shall concentrate on the algebraic system which satisfies some axioms is called a group. Now first we will discuss a binary compositions. So what is a binary compositions? Binary composition. Now if we have any non-empty set, मान लो कि G साढ़े कोल कोई non-empty set है और कार्टिशियन प्रोडक्ट G क्रॉस G ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ A, B such that AB belongs to G. so ਇਹ ਟਿਊਪਲ ਫਾਰਮ ਚ ਆ ਗਏ ਕਾਰਟੀਸ਼ੀਅਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ G cross G. now this is a suppose this is a sum set G cross G and this is a sum set which is a G at F is a any map from G cross G to G. So this is called a binary composition. So what is binary composition? F is a binary composition. F is a binary composition on of G. So on set G. So this is a mapping which is from G cross G to G, which is called a binary compositions. Now element of this set is A comma B, then its image goes to F of A comma B. So this is the image of this values and this F A comma B
it belongs to G. This belongs to G, element of G. So in notation, this image can be written as A star B. So star is a binary composition. So it means A star B belongs to G for every AB belongs to G, this values. So it means it is closed under binary composition star. So star is some fixed symbol, so we can replace star may be plus, it may be plus, then it means binary composition is addition. It may be multiplication, it means binary composition is multiplication, and it may be any other binary compositions. So for example, if in case of additions, two element combine as A star B, which is equal to A plus B, and in case of multiplication, A into B या A star B, which is equal to A multiplication B. सो इस तो इलावा साडे कोल होर भी बाइनरी कंपोजिशन हो सकदियां. सो मोस्ट कॉमन जिहड़ी बाइनरी कंपोजिशनस है वो साडे कोल की आ जांदा कि प्लस यानी एडिशन, और दूसरा साडे कोल आ जांदा मल्टीप्लिकेशन. सो कंपोजिशन टेबल असी किस ढंग दे नाल कंस्ट्रक्ट करीदा? कंपोजिशन टेबल. Suppose in this case I take a set G whose element are 1, -1, iota and minus iota, this element. So check करिए binary composition. So असी multiplication ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ binary composition ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ multiplication वाली use करते हैं. So this values, so here again this is a binary composition table. So here it is 1, -1, iota, minus iota. Here it is 1, -1, iota, minus iota. तो बाइनरी कंपोजिशन जो भी है उन्होंने इत्थे मैंशन कर देना. अगर मल्टीप्लिकेशन आ तो डॉट पा देंगे. नाउ दिस एलिमेंट मल्टीप्लाई विद दिस रो, इस रो नाल मल्टीप्लाई करेगी, और जदों मल्टीप्लाई किया दिस वैल्यू विल बिकम 1, -1, iota, minus iota. Similarly -1, so -1, 1, minus iota and plus iota. उस तो बाद साढ़े कोल आ गया iota, minus iota, -1, और this is a +1. So next is minus iota, plus iota, minus iota square 1, फिर आ गया माइनस माइनस प्लस. सो दिस इज़ ए -1. हुण असीं देखिए कि जिहड़े ये एलीमेंट कंपोज होने तो बाद, मतलब मल्टीप्लिकेशन तो बाद जिहड़े साडे कोल एलीमेंट तैयार होए वो किहड़े किहड़े आ? दे आर 1, -1 ਜਾਂ ਆਇਓਟਾ ਆ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ ਆਇਓਟਾ. ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੋ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੰਪੋਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ 1 ਬਣ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ -1 ਬਣ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਆਇਓਟਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ ਆਇਓਟਾ ਬਣ ਰਿਹਾ. ਇਟ ਮੀਨਸ A into B belongs to G for every AB belongs to G. It means G is closed under multiplication. If it is closed under multiplication, now we get a some system. This system is G with binary composition multiplication. So साढ़े को सिस्टम बन गया, और ये सिस्टम बाइनरी कंपोजिशन हो गई. ਇਹਦਾ मतलब G is closed under साढ़े को multiplications. So similarly ਅਸੀਂ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ਨੂੰ ਵੀ डिस्कस कर सकते हैं. सो ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ डिस्कस करांगे. ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੈਮੀ ਗਰੁੱਪ.
तो याद रखना जदों असी बाइनरी सिस्टम की गल करनी है उस बाइनरी सिस्टम च क्लोजर प्रॉपर्टी आटोमैटिकली ट्रू है। ठीक है जी। तो हुण आपां गल करिए सैमी ग्रुप की। तो सैमी ग्रुप क्या है? अगर मेरे कोल कोई अलजबराइक सिस्टम है, अलजबराइक सिस्टम है जी दा विद स्टार। ठीक। सो जी की है नॉन एम्प्टी सेट और स्टार की है बाइनरी कंपोजिशन। सो दिस इज कॉल्ड ए सैमी ग्रुप। सो इनू असी सैमी ग्रुप कवांगे अगर इट satisfy one property, that property is called associative law, that property is called associative law। ठीक है जी। हुण associative law नूं समझिए की है। अगर असी जी दे विचों 3 एलीमेंट्स लईए ए बी सी बिलोंग्स टू जी और वो इस प्रॉपर्टी नूं सैटिस्फाई कर दें ए स्टार बी पहला दैन स्टार सी विच इज़ इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। सो दिस अगर इस प्रॉपर्टी नूं सैटिस्फाई कर दें then it is called it satisfy the associative law। तो इनू असी associative law कहांगे। अगर associative law कहांगे तो कोई भी अलजबराइक सिस्टम अगर इस प्रॉपर्टी नू सैटिस्फाई कर दे दैट इट इज़ कॉल्ड ए सैमी ग्रुप। हुण आपां अपनी पिछली एग्जाम्पल नू देखिए। अगर पिछली एग्जाम्पल नू देखिए तो साडे कोल इहदी बाइनरी कंपोजिशन इस जी दी मल्टीप्लिकेशन है तो अलजबराइक सिस्टम बन गया और इहदे विच जिहड़ी है साडे कोल एसोसीएटिव ला जिहड़ा आ वो सैटिस्फाई हो रहा। सो ये साडे कोल की बन गया सैमी ग्रुप बन गया। तो सानू पता होना चाहिए कि ये सैमी ग्रुप है या नहीं है। सैमी ग्रुप तो बाद साडे कोल अगली डेफिनेशन जिहड़ी आ जाती है सो दैट इज़ कॉल्ड ए ग्रुप। सो दैट इज़ एक्सटेंशन ऑफ सैमी ग्रुप। सो दैट इज़ कॉल्ड ए ग्रुप। सो कोई भी ग्रुप जिहड़ा आ वो सैमी ग्रुप जरूर होएगा बट कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू। ठीक। वो अगे आपां देखांगे। नाउ इन दिस केस ग्रुप की गल करिए तो साडे कोल एन अलजबराइक सिस्टम उस ढंग नाल लै लो अलजबराइक सिस्टम जिहदे विच जी साडे कोल नॉन एम्प्टी सैट आ स्टार साडे कोल बाइनरी कंपोजिशन आ और इनू असी कहांगे इज़ कॉल्ड ग्रुप। इनू असी ग्रुप कहांगे अगर ये कुछ प्रॉपर्टीज़ नूं सैटिस्फाई कर जाए। सो पहली प्रॉपर्टी तो क्लोजर प्रॉपर्टी हुंदी है जिहड़ी कि ऑलरेडी इहदे विच एग्जिस्ट कर रही है। राइट। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ क्लोजर प्रॉपर्टी। सो विच इज़ कॉल्ड ए क्लोजर प्रॉपर्टी। सो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मैं कोई दो एलीमेंट जी दे विचों लवां दैन ए स्टार बी भी जी नू बिलोंग कर जे सो इट मीनस इट इज़ क्लोज्ड अंडर बाइनरी कंपोजिशन स्टार। ये साडे कोल आ गई क्लोजर प्रॉपर्टी जिहड़ी कि बाइनरी कंपोजिशन का हिस्सा है। नंबर 2 ते सैकंड प्रॉपर्टी है एसोसीएटिव ला। ठीक। तो एसोसीएटिव ला क्या है जिहड़ा कि असी सैमी ग्रुप च पढ़िया ए बी सी 3 एलीमेंट जी चो लईए तो ए स्टार बी फिर आ गया स्टार सी विच इज़ इक्वल टू ए स्टार
B star C, ये साढ़े कोल एसोसीएटिव प्रॉपर्टी साढ़े कोल आ गई। और इत्थे तक साढ़े कोल की बन गया, सैमी ग्रुप बन गया। एंड नंबर 3 साढ़े कोल आ गया विच इज़ कॉल्ड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। सो क्या है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी? अगर मैं कोई भी एलिमेंट जी चो लवां, सो देयर एग्जिस्ट ई एलिमेंट बिलोंग्स टू जी सच दैट ए स्टार ई विच इज़ इक्वल टू ई स्टार ए, दिस इज़ इक्वल टू ए। और प्रॉपर्टी नंबर 4 जिन्हों असी कहने एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या है कि अगर मैं कोई भी एलिमेंट जी चो लवां, देयर एग्जिस्ट सम another element which belongs to G such that A star A inverse is equal to identity and A inverse star A is equal to identity, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ। ਅਗਰ मेरे को बाइनरी कंपोजिशन जिहड़ी प्लस है, ठीक, तो असी एडिशन च काम कर रहे हैं। एडिशन च आइडेंटिटी क्या होएगी? A प्लस 0 0 प्लस A विच इज़ इक्वल टू A, then in that case 0 is called additive identity, 0 is called additive identity। हुण आ गई इनवर्स की गल, तो A दा इनवर्स क्या होएगा? माइनस A विच इज़ 0 एंड सिमिलरली माइनस A प्लस A। सो माइनस A इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ A, रिमेंबर दैट। अगर आपां मल्टीप्लिकेशन च गल कर रहे हैं, सो सानू पता A इंटू 1 1 इंटू A, दिस इज़ इक्वल टू A। और दूजे पासे अगर आ गया तो 1 साढ़े कोल की बन गया? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो दिस इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और इनवर्स की होएगा? A दा इनवर्स होएगा 1 बाय A, और इदा ही 1 बाय A दा इनवर्स की होएगा? A। दोनों की मल्टीप्लिकेशन करिए तो 1 के बराबर, यानी आइडेंटिटी के बराबर आ जाती। सो अगर कोई भी सिस्टम इन्हां 4 प्रॉपर्टीज़ नूं सैटिस्फाई कर दे तो उस सिस्टम नूं असी ग्रुप कहने हैं। इस तो इलावा अगर एक प्रॉपर्टी होर सैटिस्फाई हो जाए दैन इट इज़ कॉल्ड अबेलियन ग्रुप। सो अबेलियन ग्रुप, ਜਾਂ असी ਇਹਦੇ ਲਈ दूसरा वर्ड यूज़ कर दें कम्यूटेटिव ग्रुप, या अबेलियन या कम्यूटेटिव ग्रुप। सो ਇਹਦੀ प्रॉपर्टी क्या है? ਇਹਦੀ प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी ए बी बिलोंग्स टू जी अगर साढ़े कोल है, और ए स्टार बी अगर बी स्टार ए दे बराबर आ जाए, then it is called a कम्यूटेटिव ला। तो नॉर्मली साढ़े कोल जेड़े भी नैचुरल नंबर, रैशनल नंबर, रियल नंबर नाल, कंपलैक्स नंबर नाल ऑपरेट होंदे आ, वो कम्यूटेटिव होंदी है। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जिहड़ी होल्ड नहीं होंदी, वो मैट्रिसेस दे विच होल्ड नहीं होंदी। सो इस चीज़ नूं अपने माइंड दे विच रखना। नाउ जिहड़ा साडे कोल अबेलियन ग्रुप है, दिस इज़ नेम्ड आफ्टर ए मैथमेटिशियन। एक साडे कोल मैथमेटिशियन दे ऑनर दे विच
ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਬੈਲੀਅਨ ਗਰੁੱਪ और उस मैथमेटिशियन का नाम सी नील्स NIELS नील्स हेनरिक एबल। ठीक, नील हेनरिक एबल। सो दिस एबल is called a abelian group. So this is 1802 to 1829। so इस मैथमेटिशियन दे ऑनर दे विच इहदा नाम अबेलियन ग्रुप रखा गया। सो ये कोई एग्ज़ाम दे विच नहीं पूछा जाएगा, बट फॉर नॉलेज सानू पता होना चाहिए कि ये नॉर्वे दा मैथमेटिशियन सी जिहदे नाम ते साडे कोल ये अबेलियन ग्रुप रखा गया। अगर जी दे एलीमेंट फाइनाइट होण तो साडे कोल जिहड़ा ग्रुप है वो बन जाता फाइनाइट। अगर जी दे एलीमेंट इनफाइनाइट हो जाए तो साडे कोल जिहड़ा ग्रुप है वो बन जाता इनफाइनाइट ग्रुप। सो ये उस सैट दे उस एलीमेंट दे उत्ते डिपेंड करदा कि साडे कोल फाइनाइट ग्रुप है या इनफाइनाइट ग्रुप है। नाउ असी कुछ एग्जाम्पल नूं डिस्कस करते हैं। उस तो पहला मैं इत्थे कुछ प्रॉपर्टीज़ नूं लिख लिया। सो वन इज़ क्लोजर, सैकंड इज़ एसोसीएटिव। ठीक है, तो इत्थे तक ही बन गया, इत्थों तक सैमी ग्रुप बन गया। सो अगर कोई भी कंपोजिशन जी विद स्टार इन्हां पहलियां दो प्रॉपर्टीज़ नूं सैटिस्फाई कर देवे तो वो साडे कोल की बन जाता सैमी ग्रुप। उस तो बाद अगला आ गया आइडेंटिटी और फिर आ गया इनवर्स। और अगर कोई भी सिस्टम जिहड़ा उपर आपां डिस्कस कर रहे हैं वो इन्हां चार प्रॉपर्टीज़ नूं सैटिस्फाई कर देवे तो दैट विल बिकम एज ए ग्रुप। ठीक, और अगर एक प्रॉपर्टी साडे कोल आ गई अबेलियन या कम्यूटेटिव, तो अगर चार दे नाल ये पंजवीं प्रॉपर्टी भी सैटिस्फाई कर देवे तो उस ग्रुप नूं असी कहने आ अबेलियन ग्रुप। ठीक है जी। सो ये सानू स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। बाइनरी कंपोजिशन प्लस दी भी हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन दी भी हो सकती है। हुण आपां जिहड़ी एग्जाम्पल नाल चलांगे। सो सब तो पहला मैं सैट ऑफ नैचुरल नंबर नूं लेना। सो सब तो पहला मैं सैट ऑफ नैचुरल नंबर और बाइनरी कंपोजिशन मैं प्लस लेना दिस वैल्यूज, बड़े ध्यान। सो प्लस की तुहानूं एडिटिव आइडेंटिटी बारे मैं दस चुका। सब तो पहला अगर मैनू डिस्कस कर रहे हैं प्लस दे नाल क्लोजर प्रॉपर्टी इहदे विच ट्रू होएगी। क्यों ट्रू होएगी? क्योंकि सम ऑफ टू नैचुरल नंबर इज़ अगेन नैचुरल नंबर, तो साडे कोल क्लोजर प्रॉपर्टी इहदी ट्रू हो गई। एसोसीएटिव नॉर्मली नंबर्स दे विच ट्रू हुंदी है, रियल नंबर, नैचुरल नंबर, इंटीजर सारियां कुछ, तो इस करके उहदे बारे चिंता करने की लोड़ नहीं। थर्ड आ गई आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी। ज़ीरो, तो ज़ीरो एन नूं बिलोंग करता नहीं। अगर ज़ीरो एन नूं बिलोंग नहीं करता इसका मतलब साडे कोल आ प्रॉपर्टी ट्रू नहीं है। सो अगे चलण की लोड़ नहीं। तो पहलियां दो प्रॉपर्टीज़ ट्रू हो गई, तीजी नहीं। पहलियां दो प्रॉपर्टीज़ करके ये साडे कोल की बन गया? सैमी ग्रुप बन गया। इट इज़ ए सैमी ग्रुप। पर आइडेंटिटी ना होने करके ग्रुप नहीं बनया। सो इट इज़ बट नॉट ए ग्रुप। सो दिस इज़ ए सैमी ग्रुप बट नॉट ए ग्रुप। ठीक है जी। तो सानू एग्जाम च क्वेश्चन कितना पूछा जा सकता? एग्जाम च कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ सैमी ग्रुप विच इज़ नॉट ए ग्रुप। तो वो की होएगा?
साडे कोल n प्लस होएगा। हुण आपां अगली एग्जाम्पल लै लैंदे हां। नैचुरल नंबर तो बाद z लै लिया सैट ऑफ इंटीजर और विद प्लस ना, फिर सैट ऑफ रियल नंबर देखांगे, तो हजे प्लस नाल ही चल रहे। तो सब तो पहला क्लोजर प्रॉपर्टी ट्रू होएगी। क्यों जी? क्योंकि सम ऑफ टू इंटीजर इज अगेन इंटीजर, तो क्लोजर प्रॉपर्टी ट्रू हो गई। उस तो बाद एसोसीएट बारे ज़्यादा टेंशन लैन की लोड़ नहीं, तो एसोसीएट भी हो गई। थर्ड है आइडेंटिटी। हुण प्लस बाइनरी कंपोजिशन आ, आइडेंटिटी की होएगी 0, सो आइडेंटिटी भी ये विच है, राइट। सो आइडेंटिटी भी ट्रू हो गया। थर्ड आ गया इनवर्स। इनवर्स दे विच अगर आप चैक करिए तो 2 का इनवर्स की आ -2, क्योंकि एडिटिव इनवर्स चलना। 3 का इनवर्स की है -3, 4 का इनवर्स की है -4। सो साडे कोल इनवर्स वाली प्रॉपर्टी भी ट्रू हो गई। उस तो बाद ਇਹਦਾ मतलब साडे कोल जिहड़ा Z प्लस है सैमी ग्रुप तो है ही है, नाल दे नाल ये साडे कोल की बन गया, ग्रुप बन गया। ठीक, पहली गल। हुण कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी ये होल्ड होंदी है। सो ਇਹਦਾ मतलब ये बेसिकली कल्ला ग्रुप नहीं बनिया, ये साडे कोल किदां दा ग्रुप बन गया, ये साडे कोल अबेलियन ग्रुप बन गया, अबेलियन ग्रुप बन गया। ठीक, बट फिर असी अगे चलीए। Z दे विच एलीमेंट किन्ने आ? इनफाइनाइट। तो असी इनू कह सकते हैं कि इट इज़ ए इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप। सो Z विद प्लस साडे कोल इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप हो गया। सो इदां ही असी R प्लस दे बारे स्टडी कर लीए, तो क्लोजर प्रॉपर्टी ट्रू हो गई। क्यों? क्योंकि सम ऑफ टू रियल नंबर इज़ अगेन रियल नंबर। एसोसीएट बारे घाबरना नहीं। आइडेंटिटी यदि की है 0, आर नू बिलोंग करदा। उस तो बाद साडे कोल की आ गया, दिस वैल्यूज आइडेंटिटी आ गई। इनवर्स भी क्लीयर आ रियल दे विच, 3 का -3, 2/3 का -2/3, और अबेलियन प्रॉपर्टी भी ये ट्रू है। सो व्हाट इज़ दिस? इट इज़ अगेन ए इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप, इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप। ठीक है जी। सो नॉन अबेलियन ग्रुप नॉर्मली किहड़े होणगे? जिहड़े मैट्रिक्स दी फॉर्म च होणगे। तो साडे कोल असी इनू सैट ऑफ इंटीजर, सो इस ढंग नाल असी सैट ऑफ कंपलैक्स नंबर नू भी चैक कर सकते हैं। ये असी कुछ एग्जाम्पल्स लईआं प्लस दियां। हुण आपां एग्जाम्पल स्टडी कर लीए माइनस मल्टीप्लिकेशन दी, जिहदे च बाइनरी कंपोजिशन मल्टीप्लिकेशन हो चुके। सो सब तो पहला मैं एग्जाम्पल स्टडी की क्यू स्टार। क्यू स्टार की है? सैट ऑफ ऑल नॉन ज़ीरो, आ याद रखना, नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। ठीक है जी। क्यू स्टार की है? सैट ऑफ नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर। तो क्यू स्टार दे नाल बाइनरी कंपोजिशन में मल्टीप्लिकेशन यूज़ कर ली। सो पहली प्रॉपर्टी क्लोजर चेक करिए। नाओ कोई भी 2 रैशनल नंबर लईए, उन्हां दा प्रोडक्ट भी रैशनल नंबर हुंदा। सो इट मीनस इट इज़ क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। दूजी प्रॉपर्टी है एसोसीएटिव। ठीक है जी। सो ये प्रॉपर्टी ट्रू होएगी। थर्ड प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी। सो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की हुंदी 1, और 1 किनू बिलोंग करदा? क्यू स्टार नू बिलोंग करदा। तो दिस प्रॉपर्टी इज़ आल्सो ट्रू। चौथी प्रॉपर्टी इनवर्स, यानी 2 का इनवर्स 1/2, 3 का इनवर्स 1/3। ठीक है जी। सो
4/5 ਦਾ ਇਨਵਰਸ 5/4, तो ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵਰਸ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ। तो इट मीनस ਇੱਥੋਂ तक सैट साढ़े कोल की बन गया, ग्रुप बन गया। इन एडिशन टू दैट आल्सो इट सैटिस्फाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो ये साढ़े कोल की बन गया, अबेलियन ग्रुप बन गया। और क्यू स्टार दे विच जिहड़े एलीमेंट्स है वो किन्ने आ, इनफाइनाइट। सो ये की बन गया, इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप साढ़े कोल बन गया। तो ये साढ़े कोल क्यू स्टार वाली एग्जाम्पल नूं असी डिस्कस किया। इदां ही सेम लाइन ते असी आर स्टार नूं डिस्कस कर सकते। सो आर स्टार की है, सैट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स, ठीक है जी। सो बिल्कुल सेम लाइन ऑफ एक्शन ते ये साढ़े कोल की बन जाएगा, इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप। और एक इहदे च बन रहा मल्टीप्लिकेशन च बन रहा। सो दिस इज़ ए इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप। सिमिलरली वी कैन go to the complex number C star. So what is C star? It is set of all non-zero complex number, ठीक है जी। और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ एलिमेंट किदां दे आ गए, a plus iota b such that a b belongs to r और नाल दे नाल a plus iota b नॉन ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, नॉन ज़ीरो आपां क्यों वर्ड यूज़ कर रहे हैं बार बार, वो इस करके कि जदों इनवर्स लैना, अगर आप जीरो की गल करांगे तो जीरो का इनवर्स की होएगा 1/0। सो वट इज़ दिस, इट इज़ इनफाइनाइट टर्म्स या नॉट डिफाइंड एलीमेंट। ਇਹਦਾ मतलब जीरो का इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो इस करके ग्रुप उदों ही बनेगा जदों ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जीरो नहीं होएगा। अगर जीरो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एंटर कर गया तो इट मीनस जीरो का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर जीरो का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इन दैट केस साढ़े कोल की हो जाएगा कि ये ग्रुप नहीं बनेगा। हुण कंपलैक्स नंबर दे विच मल्टीप्लिकेशन सानू पता, तो फस्ट प्रॉपर्टी नू चैक करिए। फस्ट है क्लोजर। क्लोजर नू कोई दो कंपलैक्स नंबर लो, प्रोडक्ट करो तो प्रोडक्ट भी कंपलैक्स नंबर आंदा। सो इट मीनस क्लोजर प्रॉपर्टी भी ट्रू हो गई। उस तो बाद अगली गल आ गई एसोसीएटिव दी। सो ये बारे ये भी साडे कोल ट्रू आ गया। थर्ड आ गई साडे कोल आइडेंटिटी। सो व्हाट इज़ आइडेंटिटी इन दिस केस? आइडेंटिटी इज़ Z1 प्लस 0 आयोटा, और ये नॉन ज़ीरो भी है और C स्टार नू बिलोंग भी करता। सो बेसिकली इट इज़ ए 1। यदि आइडेंटिटी कितनी है? 1 ही है, तो आइडेंटिटी भी हो गई। नैक्सट स्टैप दे विच आईदा इनवर्स। हुण इनवर्स देखिए, A प्लस आयोटा B नॉन ज़ीरो एलीमेंट बिलोंग्स टू C स्टार लिया, तो यदा इनवर्स होएगा 1/A प्लस आयोटा B। रैशनलाइज करिए, सिंप्लीफाई, दिस विल बिकम A माइनस आयोटा B ओवर A माइनस आयोटा B, एंड दिस विल बिकम A ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस आयोटा B ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। दिस वैल्यूज़ आ गई। तो ਇਹਦਾ मतलब की होया? ਇਹਦਾ मतलब कि दिस एलीमेंट, आ जड़ा एलीमेंट्स है
ये भी रियल नंबर ਨੂੰ बिलोंग कर गया, ये भी रियल नंबर ਨੂੰ बिलोंग कर गया। तो दिस टोटल एलिमेंट व्हाट इज दिस, इट इज़ ए इनवर्स ऑफ कंप्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b नॉन जीरो एलिमेंट बिलोंग्स टू C स्टार। तो ये साडे कोल इहदा इनवर्स हो गया। जे इनवर्स हो गया सो इन दिस केस साडे कोल C स्टार किदां दा ग्रुप हो गया, ग्रुप हो गया, क्योंकि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी ट्रू होंगी। सो चेक कर सकते हैं अबेलियन ग्रुप हो गया। और क्योंकि एलीमेंट इनफाइनाइट आ तो साडे कोल इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप बन गया। सो ये असी साडे कोल इस तरह की एग्जाम्पल डिस्कस कीतियां। सो ये जस्ट बेसिक्स है कि ग्रुप की डेफिनेशंस क्या है और ग्रुप की डेफिनेशंस तो असी किद्दां देख सकते हैं कि ये साडे कोल सैट ग्रुप है या नहीं है। इस तो अगे अगर आप चलीए तो अगर मैं मैट्रिक्स फॉर्म दे विच गल करा, सो एक मैं प्रॉपर्टी लै ली, जी लै लिया, सैट लै लिया, और दिस जी सैट ए बी सी डी यानी 2x2 दी मैट्रिक्स लै ली और इट इज़ ओवर आर यानी ए बी सी डी इट बिलोंग्स टू सैट ऑफ रियल नंबर। नाल इहदे कंडीशन दित्ती ए डी माइनस बी सी इज़ नॉन जीरो, मतलब इस मैट्रिक्स का डिटरमीनेंट नॉन जीरो है। डिटरमीनेंट नॉन जीरो का की मतलब कि ये साडे कोल इस जिहड़ा सैट है, इस सैट दी अगर डिटरमीनेंट मैट्रिक्स का डिटरमीनेंट नॉन जीरो आ तो वो साडे कोल नॉन सिंगुलर होगी मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इनवर्टेबल होंदी है, तो इनवर्टेबल करके इस डिटरमीनेंट नूं असी नॉन जीरो लैना। नाउ दिस जी बहुत ईजली वी कैन चेक दैट दिस जी इज़ ए नॉन अबेलियन, क्योंकि मैट्रिक्स दे विच कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ट्रू नहीं हुंदी। नॉन अबेलियन ग्रुप, दिस इज नॉन अबेलियन ग्रुप अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस। ठीक है जी। सो ये साडे कोल किदां दा होएगा, नॉन अबेलियन ग्रुप होएगा। ग्रुप किदां बनेगा, पहला ग्रुप चेक कर लिए। सो फर्स्ट आ गया क्लोजर प्रॉपर्टी। सो आपां दो मैट्रिसेस लईए, उन्हां दी मल्टीप्लिकेशन करिए और वो मल्टीप्लिकेशन तो बाद भी साडे कोल 2x2 दी मैट्रिसेस बनेगी जिहदे एलीमेंट रियल नूं बिलोंग करदे। सो इट मीनस क्लोजर प्रॉपर्टी इज सैटिस्फाइड। जां दूजे लफ्ज़ां च कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज़ अगेन मैट्रिसेस। सो क्लोजर प्रॉपर्टी सैटिस्फाई हो गई। थर्ड आ गई, सैकंड आ गया एसोसिएट। एसोसिएटिव बारे पता ही है कि एसोसिएटिव ला मैट्रिसेस दे विच होल्ड हुंदा। उस तो बाद आ गई आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैट्रिसेस बारे सानू पता है। सो 2x2 दी मैट्रिसेस 1 0 0 1। सो दिस इज़ ए आइडेंटिटी मैट्रिसेस ऑफ दिस जी। उस तो बाद आ गया इनवर्स। इनवर्स अगर साडे कोल असी इस मैट्रिक्स नूं लईए और इहदा डिटरमीनेंट किदां दा है, नॉन जीरो। सो इट इज़ ए इनवर्टेबल मैट्रिक्स। तो वो जिहड़ा इनवर्स होएगा दैट इज़ ए इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो फॉर एग्जांपल साडे कोल की बन जाएगा, इनवर्स। इनवर्स साडे कोल बन जाएगा। सो अगर मेरे कोल इन्हें मैं लिखना चाहवा, सो दिस वैल्यू इज़ डी माइनस बी, फिर आया साडे कोल माइनस सी, फिर आया साडे कोल ए और नीचे आ गया ए डी माइनस बी सी, फिर आया ए डी माइनस बी सी।
फिर आया ए डी माइनस बी सी, फिर आया ए डी माइनस बी सी, दिस वैल्यूज आर। सो व्हाट इज दिस? इट इज़ ए इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स ए बी सी ते डी। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये होल्ड नहीं होंगी, सो इट मीनस जी इज़ ए नॉन कम्यूटेटिव अबेलियन ग्रुप। ठीक है जी। सो ये साडे कोल सिंपल एग्जाम्पल सीगियां। इस तो इलावा साडे कोल जिहड़ियां नैक्सट एक दो एग्जाम्पल्स है, जिद्दां कंगुरेंस मॉड्यूलो प्लस दियां ते कंगुरेंस मॉड्यूलो मल्टीप्लीकेशन दियां, वो असी नैक्सट लैक्चर च डिस्कस करांगे। बट एक सिंपल एग्जाम्पल असी लै लीए जी 1 ओमेगा ओमेगा स्केयर। सो ओमेगा की है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टी क्या होंगी? ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। दूजी प्रॉपर्टी होंगी 1 प्लस ओमेगा स्केयर इक्वल टू 0। ठीक है जी। हुण आपां चैक करिए कि ये ग्रुप है कि नहीं है। सो दिस मैं बाइनरी कंपोजिशन टेबल तैयार करन लगा, क्योंकि ये एलिमेंट फाइनाइट है। सो दिस इज़ अ बाइनरी कंपोजिशन टेबल ओमेगा ओमेगा स्केयर 1 ओमेगा स्केयर। ठीक। और ये विच असी बाइनरी कंपोजिशन मल्टीप्लीकेशन लई। सो फस्ट रो बन गई 1 ओमेगा स्केयर, फिर बन गया ओमेगा स्केयर। अगली टर्म बनी ओमेगा क्यूब 1 के बराबर, फिर आया ओमेगा स्केयर ओमेगा क्यूब 1 ओमेगा दी 4 ओमेगा, दिस वैल्यूज। सो सब तो पहला असी क्लोजर प्रॉपर्टी चैक करिए। क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक। सो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि इस कंपोजिशन टेबल के एलीमेंट देखिए, जे तो 1 ओमेगा स्केयर के बराबर ही है तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो गई। तो चैक कर लिया, साढ़े कोल वही एलीमेंट है। उस तो बाद साढ़े कोल अगली प्रॉपर्टी आ गई एसोसीएटिव। सो वो भी चैक कर ली। थर्ड आ गई आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी 1 होंगी, वो भी ये है। हुण आ गया इनवर्स। इनवर्स चैक करन लई ये चैक करो कि क्या हरेक रो दे विच 1 है, दिस 1 है, दिस 1 है, दिस 1 है। ਇਹਦਾ मतलब हरेक एलीमेंट का इनवर्स भी है, यानी कि 1 का इनवर्स कौन है? 1 है। ओमेगे का इनवर्स कौन है? ओमेगा स्केयर है। और ओमेगे स्केयर का इनवर्स कौन है? ओमेगा है। सो इट मीनस इनवर्स भी है। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी असी चेक कर सकते हैं। सो दिस इज़ ए फाइनाइट अबेलियन ग्रुप। सो व्हाट इज़ दिस? इट इज़ ए फाइनाइट अबेलियन ग्रुप। सो याद रखना, ये साढ़े कोल फाइनाइट अबेलियन ग्रुप बन गया। सेम आपां ऑलरेडी पहला डिस्कस किया सी बाइनरी कंपोजिशन टेबल, तो इनू भी चेक कर लीए। सो सब तो पहला क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करन दा तरीका की है? एलीमेंट देखो और एलीमेंट साढ़े को 1 -1 आयोटा -1 है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी ट्रू हो गई। एसोसीएटिव बारे ज़्यादा चिंता करने की लोड़ नहीं, सो इट इज़ ट्रू। आइडेंटिटी चेक करो, आइडेंटिटी 1 ये है, आ पई है। ठीक, वो भी हो गया। हुण चेक करो इनवर्स। इनवर्स चेक करन दा की तरीका आ? हरेक रो च चेक करो 1 है, इत्थे भी है, इत्थे भी है, इत्थे भी है, इत्थे भी है। तो इसका मतलब हरेक एलीमेंट का इनवर्स भी है। तो 1 का इनवर्स कौन है? 1। और -1 का इनवर्स कौन है? -1। उस तो बाद आयोटे का इनवर्स कौन है? माइनस आयोटा। और माइनस आयोटे का इनवर्स कौन है? आयोटा। सो हरेक एलीमेंट का इनवर्स भी हो गया। अगर इनवर्स भी हो गया तो साढ़े को एक ही बन गया, ग्रुप बन गया। क्योंकि कम्यूटेटिव आ तो अबेलियन ग्रुप बन गया। क्योंकि फाइनाइट आ
सो दिस इज़ ए फाइनाइट अबेलियन ग्रुप। तो एग्ज़ाम च पूछा जा सकता कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप। ठीक, तो उस सिस्टम दे विच उस ढंग दे नाल असी प्रूव कर सकते हैं कि दिस इज़ ए साडे कोल फाइनाइट अबेलियन ग्रुप। हुण देखो असी गल कर रहे सी नैचुरल नंबर दी प्लस दे विच। हुण नैचुरल नंबर नूं अगर आपां मल्टीप्लीकेशन दे विच चैक करन दी कोशिश करिए तो क्लोजर प्रॉपर्टी ट्रू हो गई। क्यों हो गई जी? क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू नैचुरल नंबर इज़ अगेन नैचुरल नंबर। तो एसोसीएटिव प्रॉपर्टी चेक करिए, वो भी ट्रू हो गई। ਇਹਦਾ मतलब सैमी ग्रुप ਤਾਂ ਇਹ बन गया। सो दिस इज़ ए सैमी ग्रुप। उस तो बाद क्या आंदा? उस तो बाद आंदा आइडेंटिटी। आइडेंटिटी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 है तो भी हो गया। फिर आ गया इनवर्स। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि 2 ਦਾ इनवर्स की होना 1/2, 3 ਦਾ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की होना 1/3 और 1/3 नैचुरल नंबर नहीं है, 1/2 भी नैचुरल नंबर नहीं है। सो इनवर्स वाली प्रॉपर्टी फेल हो गई। सो व्हाट इज़ दिस? इट इज़ ए सैमी ग्रुप बट नॉट ग्रुप। तो ये ग्रुप नहीं है पर ये सैमी ग्रुप है। सो इस ढंग दे नाल सानू पता होना चाहिए कि साडे कोल जिहड़ा सामने बाइनरी कंपोजिशन पई है क्या वो ग्रुप है कि नहीं है, या वो सैमी ग्रुप है। जे ग्रुप है तो किस तरह का ग्रुप है? कम्यूटेटिव अबेलियन ग्रुप है या नहीं है, फाइनाइट ग्रुप है या नहीं है। ठीक है जी। सो दीज आर द सिंपल एग्जाम्पल्स that we discussed in this the first lecture. So that is basis. So in the next lecture we will discuss some important and tough example, right? So that is related to binary composition in addition as well as in multiplication.